And there's some latest news coming in. Let's go to that. Well, Haryana BJP netas have triggered a controversy. Karnal Mayor Renu Bala Gupta and Deputy Mayor and Senior Deputy Mayor were seen at the satsang of a rape convict. And we are talking about Baba Ram Rahim, who's out on a 40-day parole. Attending the satsang via video conferencing, the BJP leaders even invited him to visit Karnal and to hold another satsang there. Anshul Singh is with us on the broadcast. Anshul, the political patronage that Baba had enjoyed before his conviction was very well known. No wonder he continues to enjoy that even after his conviction. He's out on a parole at the end of the day. That's right. Definitely the allegations that were being raised by the opposition party in this case against the parole that was given to Gurmeet Ram Rahim after keeping in mind the upcoming panchayat polls in Haryana. And that definitely seems to be true because the mayor and deputy mayor of Karnal were actually seen in that satsang that was conducted online from UP because remember he is currently stationed in Bagpat. He's in his dera in Bagpat from where he conducted this satsang. And not only the mayor and the deputy mayors but also the people who were actually contesting these panchayat polls were also present in this event. They also took the so-called blessings of Baba Ram Rahim for the upcoming panchayat polls. Now, the kind of political patronage that he has been getting before, he was accused of, because before he was convicted of rape and murder, he continues to enjoy that yet again. Although the jail staff has been saying and the jail superintendent has been saying that it is a right of a convict to get parole, and on that he has been given a parole of 40 days. Now this is the third parole that he has gotten in this year itself. So yes, definitely a lot of questions were raised on the timing of this parole, and yes, that has again been proven right. Now the Congress and the other opposition parties and the SGPC has taken this hands-on, and they are now trying to make this an event where they are actually alleging Baba Ram Rahim for trying to influence the upcoming elections because he actually controls a lot of population. Anshul, forget Baba Ram Rahim trying to influence. These are mayors. These are elected people. They should not be rubbing shoulders with a rape convict. Napinder Brar is also with us on the broadcast. Napinder ji, बाबा राम रहीम और उनके राजनीतिक ताल्लुक काफी पहले से जाने जाते हैं, मगर अब तो कोर्ट ने भी बोल दिया है कि वो रेप के दोषी हैं, परोल पे बाहर हैं, और इस तरह से मेयर उनका सत्संग अटेंड कर रहे हैं, उनको बाकायदा आमंत्रण दिया जा रहा है कि आप आइए और यहाँ पर भी सत्संग कीजिए. बहुत सारे सवाल उठते हैं बीजेपी के लिए. देखिए, राम रहीम को लेकर के जैसे उसे पैरोल मिली तब से विवाद उनका पीछे नहीं छोड़ रहा. इससे पहले भी जब पहली बार उन्हें पैरोल मिली थी तब भी खूब विवाद हुआ था. तब भी सवाल उठे थे कि चुनाव के चलते शायद कोई राजनीतिक फायदा लेने के लिए उन्हें पैरोल दी. विपक्ष ने खूब हल्ला किया था. पंजाब में मुद्दा खूब गरमाया था. क्षमा करिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ. अरविंद सैनी, हु इज द बीजेपी मीडिया हेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा, इज जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट. अरविंद जी, क्या वजह है कि करनाल के मेयर रेनू बाला गुप्ता और डेप्यूटी मेयर जो हैं वो एक रेप के जो आरोपी भी नहीं है, कन्विक्ट है, उनके साथ सत्संग अटेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारे इलाके में भी आइए और सत्संग करिए. क्या ये सही है? देखिए जैसा ये वीडियो में देखा गया है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जिस तरह की बातें की गई हैं, मुझे लगता है कि इसको एक अलग प्रकार से मतलब जो भी विपक्ष है या जिनको राजनीतिक लाभ लेना है वो एक अलग प्रकार से इसको हवा दे रहे हैं. जबकि सच ये है कि कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी अपराध में जेल के अंदर था, वो कानूनी प्रक्रिया के रूप के तहत जेल से बाहर आया है और जेल से बाहर आकर अच्छी बातें करना या समाज हित की बातें करना मुझे नहीं लगता कि कोई अपराध है. अरविंद जी, जो बातें करना, क्योंकि आप एक बहुत ही जानकार आदमी हैं, बीजेपी के मीडिया हेड हैं आप हरियाणा से. मैं और आप दोनों जानते हैं कि कानूनन रूप से आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि वो परोल पे बाहर है, कोई जेल से बाहर भाग के तो आए नहीं और सत्संग कर रहे हैं. सवाल यहाँ पर कानूनी नहीं है, नैतिक है. ये मेयर्स हैं और ये रेप के एक कन्विक्ट है. इनके ऊपर जो आरोप थे वो एक माइनर लड़की ने भी लगाए थे. इन्होंने किस तरह से इनके कन्विक्शन के बाद पूरे प्रदेश में आग लगी थी वो भी बात आपको याद होगी. तो क्या नैतिक रूप से सही है मेयर का और बाकी लोगों का इस तरह से कन्विक्ट के सत्संग में खड़े होना या उसके साथ पार्टिसिपेट करना? देखिए जी, मैं आपको बता देता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सह मीडिया हेड हूँ हरियाणा का. और मैं आपको ये बता रहा हूँ इस नाते, क्योंकि मेरे पास एक दायित्व है, इस नाते मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि बाबा राम रहीम के
लाखों फॉलोअर्स हैं, उनमें एक फॉलोअर हमारी मेयर भी हो सकती हैं, और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने केवल ये बातें की हैं, सत्संग की बातें, मतलब उन्होंने कहा कि भाई सफाई या समाज हित की बातें, कि बाबा हमारे करनाल में आइए और जहाँ भी कुछ सफाई का अभियान चलाएं, क्योंकि आप देश भर में। और राम रहीम ने भी यही बातें बोली हैं कि भाई हम पूरे देश में, हमारे जो भी जितने भी समर्थक हैं वो पूरे देश में ये काम करें, देश को आगे बढ़ाएं, समाज हित के काम करें। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अनैतिकता है। बलात्कार के दोषी हैं ये, समाज हित की बात करेंगे। मैं तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और नैतिक अधिकार अगर ये ढूंढ भी ले तो राजनेता उनके साथ खड़े होकर उनकी पीठ नहीं थपथपा सकते। अरविंद जी, कोर्ट ने एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। कोर्ट ने उनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत 40 दिन के लिए पैरोल के पर छोड़ा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट ने देखा होगा, उनका जेल में भी चाल चलन देखा होगा कैसा है। और फिर जेल से बाहर आके कोई भी अपराधी, मैं केवल राम रहीम की बात नहीं कर रहा, किसी भी अपराधी को किसी भी पृष्ठभूमि का है, वो अच्छी बातें अगर करे, उसे सुधरने का अधिकार नहीं है क्या? वो नहीं सुधर सकता। अरविंद जी, बिंदु पे बात करते हैं ना, बिंदु पे बात करते हैं, अच्छी बहस करते हैं। मैं आपसे सहमत हूं कि अगर वो परोल पे आए हैं तो एक प्रक्रिया के तहत आए हैं। परोल जो है वो हर आरोपी का अधिकार है इस देश में, वही राम रहीम को भी मिली है। परोल से बाहर आने के बाद बाबा जी सत्संग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सत्संग करें। सवाल ये है कि उनके साथ राजनेता खड़े हो सकते हैं क्या? इस सवाल पे जवाब दीजिए, क्या ये नैतिक रूप से सही है? अरविंद जी, मैं वही उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ मैडम। हाँ। कि नैतिक रूप से उनका समाज हित की बात कर रहे हैं, और ये मेरा नैतिक दायित्व है कि समाज हित में खड़े हर व्यक्ति का मैं उसके साथ चलूं, मैं उसके कदमों से कदम मिलाऊं। हाँ, ये एक अलग पहलू है कि भाई हाँ उन पे अपराध है, कोर्ट ने उनको एक कानून के तहत जेल में बंद किया है, अब कोर्ट ने उनको पैरोल पर छोड़ा है। तो अगर कोर्ट ने उनको पैरोल पर छोड़ा है तो आप उस पर भी सवाल उठाएंगे क्या? पैरोल पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। मैं कुतर्क तो कर ही नहीं रही हूँ ना आपसे, मैं तो आपसे एक अच्छी बहस कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ कि पैरोल तो हर किसी का अधिकार है। पैरोल उनको मिली है, नहीं, पैरोल मिली है, प्रक्रिया के तहत मिली है। लेकिन मैं उनसे ये पूछ रही, मैं आपसे फिर से पूछती हूँ, मेरी एक आखिरी कोशिश है आपसे, क्या मेयर को या चुने हुए नेताओं को इस तरह से रेप के दोषियों के साथ खड़े होने चाहिए? वो सत्संग करें या कुछ करें, वो दिखावा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं तो नहीं जान सकती, वो तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन क्या पब्लिक डोमेन में इस तरह से खड़ा होना चाहिए उनके साथ? लेकिन मैं अगली बात बोलता हूँ मैडम, कि वो उनके साथ कहाँ खड़ी है, उनके अपराध में कहाँ वो, उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छा किया है, वो अच्छी बात कर रहे हैं, उनका उन्होंने कहा कि हाँ आइए आप अच्छी बातें कर रही हैं, उन्होंने भी अच्छी बातें की हैं, तो उनके साथ खड़े होने की बात कहाँ हो गई? अरविंद जी देखिए, कोर्ट कचहरी में और टेलीविजन स्टूडियोज में हम बहस को कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक बॉटम लाइन है यार, ये बोल के मैं अपनी बात को विराम देती हूँ कि कहीं ना कहीं राजनेताओं को और चुने हुए लीडर्स को, मेयर्स को इस तरह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि आप किसके साथ खड़े हो रहे हैं, किसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और आप किस तरह का मैसेज आप समाज को दे रहे हैं। ये रेप के दोषी हैं और ये बात समाज को और नेताओं को नहीं भूलना चाहिए। मैं बिल्कुल मैडम, आपने सही बात कही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो आम जनता है, उन आम जनता में एक हमारी मेयर भी हैं। वो आम जनता नहीं है, वो चुनी हुई प्रतिनिधि है। विवेक बंसल फ्रॉम द हरियाणा कांग्रेस इज आल्सो जॉइनिंग अस। प्लीज हमारे साथ बने रहिए सर, मेरे आपसे यही निवेदन है। विवेक जी, ये जो मेयर साहिबा है वो खड़ी हुई हैं, इस पर एक कंट्रोवर्सी हुई है, होनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे बाबा के भक्त हैं, उसमें एक ये भी थी और वो खड़े होकर अच्छी बातें कर रही है, उसमें गलत क्या है? ये तर्क है जो बीजेपी से आ रहा है, इसके बारे में बताइए, आपकी क्या राय है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग, खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि होकर एक तरफ हम लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो उस तरीके के वैशी लोग हैं जिन्होंने कन्याओं की, महिलाओं की अस्मिता कहीं ना कहीं छीनी है, और उस दोष पर वो लोग कारावास सुनाई हुई है, और उसके बावजूद भी उनको इस तरीके से महिमा मंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ना तो सामाजिक संरचना के क्षेत्र में ये कोई अच्छी बात है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनप्रतिनिधियों का एक एक कदम जो है जनता उसको देखती है और उसका अनुसरण का प्रयास करती है। कृपया करके इससे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरीके के, जो मैं तो अपराधी कहूंगा, बाबा शब्द इनके नाम से हटना चाहिए। जो जिसको न्यायपालिका ने
कारावास दिया हो, रेप का बलात्कार का आरोपी बनाया हो, अगर ऐसे व्यक्ति को हम लोग अपना आदरणीय अनुकरणीय बनाने का प्रयास करेंगे, इससे ज्यादा आधुनिक समाज में निंदनीय कोई कृत्य नहीं हो सकता। जितनी इसकी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। अरविंद जी, इस बात का जवाब दीजिए कि भारत सरकार ने और भाजपा के बहुत सारे नेताओं ने बार बार ये बोला है कि किस तरह से देश में नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, किस तरह से हमें एक ऐसे पूरे कल्चर की संरचना करनी चाहिए जहां पे महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो कम हो सके। सरकार, प्रदेश सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार अलग अलग किस्म के कदम उठा रही है। ये जब मेयर खड़ी होती हैं एक रेप के दोषी के साथ, क्या सामाजिक मैसेज जाता है? मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, वो रेप के दोषी के साथ नहीं खड़ी हैं। तो किसके साथ? उन्होंने, मैं वही बात बोल रहा हूँ, वो एक अच्छा काम करने के लिए एक बातें कर रही हैं। जो एक सत्संग कर रहा है एक व्यक्ति, चाहे वो उस पर कुछ भी आरोप रहे, कानून के तहत वो बाहर आया, आरोप नहीं है, आरोप सिद्ध हो चुके हैं अरविंद जी। मतलब मैं कह रहा हूँ वो दोषी हैं, लेकिन वो सत्संग कर रहे हैं और वो अच्छी बात कर रहे हैं। उसमें अच्छी बात का मतलब ये है कि भाई वहाँ के हम सफाई कर सकते हैं, हम समाज के काम कर सकते हैं। उन्होंने साथ खड़े रहने की बात नहीं है ना। आप कल दिया, एक मिनट विवेक जी आ रही हो आपके पास, विवेक जी आ रही हो। अपराधी कराए जिसने किसी महिला की अस्मिता को छीना है और न्यायपालिका ने उसे दोषी किया है। और अरे भाई साहब, आपके कितने ही नेता आज भी उनके बाहर खड़े हैं, आप जाके देखो कितने नेता पहले मिलते रहे हैं, उनसे देखो आप। अरविंद सैनी एंड विवेक बंसल, आप दोनों से मैं यही कहूंगी कि एज अ वुमन, एक महिला के तौर पे जब मैं ये देख रही हूँ तो मुझे बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं, रेप के दोषी हैं। हमें पता है कि किस तरह से वो ट्रायल हुआ था, किस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, कितनी मुश्किल से न्यायपालिका ने ये फैसला दिया था और कितनी मुश्किल से जो औरतें थी उन्हें सामने आई थी और अपनी कहानी बताई थी। क्या मैसेज समाज में जा रहा है? आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं? ये एक सवाल हमारे राजनीतिक वर्ग को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। क्या आप ये बोलना चाह रही हैं कि कोर्ट ने उनको पैरोल दिया है, वो गलत दिया है? देखिए, ऐसा है सर, मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि या तो आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, क्योंकि कुतर्क मैं करूंगी नहीं। मैंने आपसे फिर से बोला है, प्रक्रिया पे तो मैंने सवाल ही नहीं उठाया। मैं तो सामाजिक मैसेज आप क्या दे रहे हैं उस पर बार बार आपसे सवाल कर रही हूँ और आप जवाब ही नहीं दे रहे। सामाजिक मैसेज उन्होंने दिया है कि सामाजिक मैसेज उन्होंने दिया है कि समाज हित में काम करना चाहिए। एक व्यक्ति ने दिया है, समाज में बलात्कार के दोषियों को किसी भी तरीके की माफी नहीं मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके की स्वीकार्यता बलात्कार के दोषियों को इस समाज में नहीं मिलनी चाहिए। और ये जो मैसेज जा रहा है ये गलत जा रहा है। अरविंद सैनी जी, विवेक बंसल, थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। देयर आर सम मोर रिएक्शंस कमिंग इन, लेट्स गो टू दैट। पब्लिक का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ता है वो पब्लिक के उस पे लड़ता है और पब्लिक के काम करने के लड़ता है। और अब हम जैसे इलेक्ट हैं तो हमारा, अगर हमने काम किया हुआ तो पब्लिक अपना आशीर्वाद देगी। और मान लो जो मतलब चुनाव में जीत हारी रहती है तो पब्लिक का आशीर्वाद बना रहना चाहिए। तो उसमें ये बात, बाबा जी का सत्संग था तो उन लोगों ने हमें बुलाया था, तो सब लोग गए थे वहाँ पे। ऑनलाइन था, यूपी से बरनावा में वहाँ जो सत्संग हाल है वहाँ से ऑनलाइन सारे हरियाणा में उनका सत्संग था। तो उन लोगों ने हम सभी बुलाया था, हम सभी गए थे वहाँ। तो साथ संगत से मिलना भी हुआ और बाबा जी से भी बात हुई। हमें तो जो हमारे को तो जो मेरे जो वार्ड के लोग हैं वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं, तो वो उन लोगों ने मुझे बुलाया था वहाँ ऑफिस में आके भी आपने जरूर आना है। We'll continue tracking this story and much more here on CNN News 18 on the other side of a quick break. Stay tuned.